So when we talk about what? National income, right? So it has how many chapters in this unit? 4, right? Circular flow of income, the basic concepts, national income aggregate, and then the methods to measure national income. The first chapter is very small. These 4 chapters, full 1 unit is of how many marks? 12. No one knows. 12 marks. ठीक है? कितना आएगा? अच्छा, ठीक है. So how much it is for? 12 marks. So today I'll start with chapter 1, which is circular flow of income. Bhuvi, wherever you feel I'm going fast or you're not understanding, do let me know, okay? Chalo. So guys, what do you understand by circular flow of income? Yes, Ananya. When one's expenditure is another person's income. And what is circular flow of income? Circular flow of income का मतलब है when the production process, the distribution process, when the income process goes on and on. Okay, the income that one receives from some other sector is their expenditure. Suppose I am receiving factor services from you, making goods and services out of it, then selling it to you, then I'm getting income, I'm again producing more and more. Basically ये जो function है ये चलता रहता है. जैसे कि क्या? Production. क्या होता है सबसे पहले? सबसे पहले there is what? Production process. Okay, after production process what we do? The income phase comes. Right, what comes into the picture? Income phase. सबसे पहले it is production process. Who produces goods and services? Firms. Firms produces goods and services by taking the help of the factor services. Yes or no? Factor services कौन provide करता है? Households. Households are the owners of factors of production. वो अपनी services देते हैं, तब क्या होता है? Production. और जो भी production से पैसे आते हैं वो किसको दिए जाते हैं? Households को. Factors of production को. हाँ या नहीं? उसके बाद वो ये पैसे यूज करेंगे या नहीं करेंगे? क्या करेंगे मैम? ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर करेंगे. तो जब वो एक्सपेंडिचर करेंगे तो और गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी. तो वापस से फर्म्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन. वापस से प्रोडक्शन, वापस से इनकम जनरेशन, वापस से एक्सपेंडिचर, है ना? तो यही इसी को हम बोलते हैं इट इज द साइकिल ऑफ व्हाट? Cycle of generation of income in the production process. आप production process में क्या करते हो? Generation of income करते हो. और ये जो production process है वो क्या होता है? It goes on and on. Production के बाद income के बाद expenditure. अगर आप expenditure करोगे that means goods और services की डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. और वापस से क्या चालू हो जाएगा? प्रोडक्शन. हाँ या नहीं? तो ये सारी चीजें पता होने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं. कितने सेक्टर्स होते हैं हमारे पास? There are 4 sectors. The number 1 is household sector. Household sector क्या होता है? Household sector होता है जिसको हम बोलते हैं household sector are the owners of factors of production. वो भी factors of production क्या क्या होते हैं बेटा? वो भी factors of production क्या क्या होते हैं? Consumption of goods and service. ध्यान दो चलो. देखो हाउसहोल्ड्स क्या होते हैं? हाउसहोल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. भूवी, क्या इन सब चीजों के बिना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं. तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है आपको? हाउसहोल्ड. और इन्हीं सर्विसेज को हम किस नाम से जानते हैं?
इन्हीं सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है। किसको, मूवी किसको प्रोवाइड करेगा ये फैक्टर सर्विसेज? ऑफ कोर्स जो गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे उनको प्रोवाइड करेगा। तो किसको प्रोवाइड करेगा, फर्म्स। तो दूसरा सेक्टर क्या आ जाता है, फर्म्स, या फिर हम उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर वो होता है जो क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। किसकी हेल्प से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। ये सेकंड सेक्टर हो गया हमारा। थर्ड सेक्टर क्या होता है, थर्ड हमारा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि वापस से काफी सारे एक्सपेंडिचर इनकर करता है। जैसे कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में वो करेगा, है ना, मे बी एनी एक्सपेंडिचर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हाँ या नहीं, या फिर कोई भी सोशल ओवरहेड एक्सपेंसेस कर सकता है वो, है ना, फ्री हॉस्पिटल्स या एजुकेशन फैसिलिटीज पे खर्चा कर सकता है, हाँ या नहीं, कर सकता है। और टैक्सेस लेता है कि नहीं, लेता है। उसके बाद फोर्थ सेक्टर क्या आता है हमारा, फॉरेन सेक्टर, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं हम इसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स बाहर से इंडिया आना, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया से गुड्स बाहर जाना। तो हम इस सेक्टर को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स माइनस एम। क्या बोलते हैं, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स और एम का मतलब होता है इम्पोर्ट्स। इज दैट क्लियर? मैम एक्सपोर्ट्स को ई क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ई का मतलब इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। मैम इंपोर्ट्स को एम क्यों नहीं बोलते, इंपोर्ट्स को आई क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए उनके सेकंड टर्म्स हमने यूज किए हैं। समझ में आ रहा है, एक्स माइनस एम। भूवी कोई डाउट है? चलो अब यहाँ ध्यान दो वापस सबके सब। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए। So when we talk about a closed economy is an economy in which we are considering there are how many sectors? अभी हम क्या मान रहे हैं कि कितने सेक्टर होते हैं for the sake of studying two, लेकिन वैसे 3 सेक्टर में या क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 3। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर हम वो भी उसने बता दिया, तो ना डंजो करवाती है तुमको फिर। चलो कोई नहीं, बाय। हम डंजो बंद हो गए। हाँ तो स्विगी, इंस्टामार्ट, रैपिडो, पोर्टर, सॉरी वही जिनी, स्विगी का जिनी खत्म, बंद हो गया। हाँ जिनी खत्म। I have tried only this porter and Rapido. यही तो पता नहीं है, सब बंद हो गए। Okay, so when we talk about which economy, understand guys, जब हम बात करते हैं किसमें, क्लोज्ड इकोनॉमी में, तो हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता। यहाँ पे हमारा रहता है कौन सा, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। लेकिन फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग हम अभी सिर्फ कितने सेक्टर कंसीडर करेंगे, 2। कौन कौन से, हाउस होल्ड एंड फर्म्स या हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। इज दैट क्लियर? और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी होती है जहाँ पे हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन करती है। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट है क्या किसी को? पक्का? आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए सबके सब आप लोग। देखो देखो ये है हमारा गाइस, ये क्या है हमारा हाउस होल्ड, और ये क्या है हमारा, ध्यान देंगे सबके सब। देखो हाउस होल्ड क्या देता है फॉर्म्स को,
Factor of production. ध्यान से, हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बोलो आप इसको, और डायरेक्टली आप इसको क्या बोलो कि हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या आएगा बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एनर्जी। क्लियर? भूवी, एनी डाउट? No. ठीक है, तो ये क्या है, फैक्टर सर्विसेज। पवन, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये हाउस होल्ड क्या देता है फर्म्स को, फैक्टर सर्विसेज। फ्री में फर्म्स क्या देगा भूवी उसके बदले में? Goods and services. अच्छा ठीक है भूवी, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम कहीं पे कोई काम करने जाती हो और तुमको गुड्स और सर्विसेज दिए जाए तो क्या आप लोगे? No, income is given. हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, whether you will take goods and services in return of your service? No. No. So what are you going to take? Income. Yes, you will take income। अब ध्यान दीजिए वापस दोस्तों, कोई भी पैसा जो फर्म्स किसको देती है, हाउस होल्ड्स को, इन रिटर्न ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के बदले गुड्स और सर्विसेज नहीं दिए जाते, पैसे दिए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलते हैं भूवी? Factor payment. फैक्टर पेमेंट्स। फर्म अगर कर रहा है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, पेमेंट, लेकिन हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, फैक्टर इनकम। लेकिन हम तो फर्म का दिखा रहे हैं ना, तो फर्म के साइड से क्या हो जाएंगे, पेमेंट। ठीक है भूवी, लैंड के बदले क्या देगा फर्म? Income. लैंड के बदले जो इनकम होती है बेटा उसको हम बोलते हैं रेंट। तो लैंड के बदले वो क्या देगा, रेंट। लेबर के बदले में क्या देगा, वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या देगा, प्रॉफिट। समझ रहे हो भूवी? Yes. लिख रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ जी। दिव्यम, Yes, sir. चलो वापस, हाउस होल्ड्स क्या देता है बेटा फर्म को, फैक्टर सर्विसेज, और उसके बदले में फर्म्स क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, उसकी फैक्टर सर्विसेज यूज करके फर्म्स ने क्या बनाया, गुड्स और सर्विसेज। तो दोस्तों हम ये मानते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में कि हाउस होल्ड जितनी भी सर्विस है वो किसको देता है, फर्म्स को। फर्म्स जितने भी पैसे वो किसको दे देता है, फर्म जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं वो पूरे कौन खरीद लेता है, हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड के पास जितने भी पैसे होते हैं वो पूरे पैसों से क्या खरीद लेता है, गुड्स और सर्विसेज। ना ही हाउस होल्ड कुछ सेव करता है, ना ही फर्म कुछ सेव करता है, ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो अब फर्म्स क्या देगा हाउस होल्ड को, दे दिया ना, अब तो गुड्स और सर्विस देगा ना, क्या देगा अब फर्म्स क्या देंगे इनको, अब इनको फर्म देगी क्या, गुड्स और अब इनको फर्म क्या देंगी, गुड्स एंड सर्विसेज। भूवी, गुड्स और सर्विसेज के बदले में पैसा देगा हाउस होल्ड की गुड्स और सर्विसेज देगा, पैसे है ना। तो जब भी हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, पेमेंट करेगा किसके लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो उसको आप बोलेंगे पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका एक नाम है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं, भाई क्या है ये, जिसको हम बोलते हैं क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान रखेंगे
याद रखेंगे कि any expenditure done by households on buying goods and services, उसको कौन सा expenditure बोला जाता है? Consumption expenditure. Is that clear, guys? Look here now, look here. This upper segment, what we say, upper segment जो है, यहाँ पे कहीं पैसों की बात हो रही है? Ma'am, goods and services and फैक्टर सर्विसेज, इन्हीं की बात हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? रियल फ्लो। नो फ्लो ऑफ मनी, नो फ्लो ऑफ money between the two sectors. So if I'll ask you to define the real flow, you will say, guys, pay attention. What is real flow? Real flow is flow of factor services from household to firms and flow of goods and services from firms to household. There is no monetary transaction involved in the real flow. Real flow is also known as physical flow. Is that clear, Bhuvi and Divyam? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And again, when we talk about the lower panel, it is just talking about money, no goods, no services. Yes or no? So guys, this is known as which flow? Money flow. Money flow. इसको हम क्या बोलते हैं? Money flow. Also कौन सा flow? Nominal flow. तो अगर मैं तुमको बोलूं कि money flow को define करो दिव्यांग, तो कैसे define करोगे? Money flow is the flow of Money flow is the flow of income between household and firm. No, It is no, also that is not correct. प्रॉपर बताओ किसके कहाँ क्या जा रहा है? भूवी, कैन यू ट्राई? Money flow is the flow of consumption expenditure to household to firms, so the flow of factor payment from firms to household. Yes. So what it is? Money flow is the flow of, ध्यान से देखो भाई दिव्यम, money flow is the flow of factor payments from firms to households and flow of consumption expenditure from household to firms. Are you understanding or not? Yes. Is that clear? Yes. अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके क्वेश्चन आने का एक चांस है, तुम्हारे 1 मार्क मान लो, 2 मार्क मान लो, तो जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो दोस्तों, जब हम स्टॉक और फ्लो की बात करते हैं तो क्या फर्क है स्टॉक और फ्लो में? स्टॉक का मतलब कभी भी कोई भी चीज, कभी भी कोई भी चीज, जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो, गाइज अंडरस्टैंड, व्हेन यू मेजर एनी वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हो, वो कौन सा वेरिएबल होता है? फ्लो वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होता है? फ्लो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो जैसे मैं अभी बोलूं, आई हैव 1 crore in my बैंक अकाउंट, जैसे मैं अभी तुमको बोलूं दैट आई हैव 1 crore in my बैंक अकाउंट, स्टॉक कॉन्सेप्ट की फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। मैम आप अभी की बात कर रहे हो, जब भी हम अभी की बात करते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता है? स्टॉक। जब भी हम एक पूरे पीरियड की बात करते हैं कि 1 साल में कितनी सेल हुई, या 2 महीने में कितनी हुई, या 5 घंटे में कितनी हुई, तो वो भी क्या होता है? फ्लो, क्योंकि हम उसमें एक पीरियड की बात करते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? ठीक है, अब मैं सबसे एक एक करके पूछूंगी, अब मुझे बता दो कि क्या है। चलो, स्टार्टिंग विद यू भूवी। So Bhuvi, savings with me on 1st March is stock or flow? Stock. Stock. Expenditure
I did in the month of May? Flow or stock? Flow. Are you sure? Yes. है ना, अगर मैं सही बोला अगर मैं कोई भी एक्सपेंडिचर का एक पीरियड बता रही हूँ, है ना, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट? एक पीरियड बता रही हूँ बेटा एक्सपेंडिचर का, तो क्या है? फ्लो। और अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ तो वो क्या है? स्टॉक। अगर मैं तुमसे पूछूंगी तुम्हारे बैग में अभी कितनी बुक्स हैं, तो वो भी कौन सा है? स्टॉक। आज के पूरे दिन में तुमने कितना पानी पिया? फ्लो। क्योंकि एक पीरियड की बात हो रही है यार। Is that clear everyone? Divyam, Bhuvi, any doubt you guys have? चलो आ जाओ, चैप्टर 1 फ्रॉम द बुक। आ जाओ, बुक खोलो। टैंक की वाला क्वेश्चन आता है क्या? ये जो टैंक दिया हुआ है आपको, फ्लोर्स और ऐसा तो नहीं आता, हमें एग्जाम में पूछ लिया थोड़ा सा इजी है वो। एग्जाम्पल के साथ बताओ अच्छा है ना, तो बहुत इजी हो जाता है बेटा, आप आराम से वैसे बता सकते हो ये। हाँ कोई कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पिक्चर वाले जो फ्री होते हैं, कोई है जो नहीं बना पाते। अरे भाई क्या है? आ जाओ, देखो आ जाओ, कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, आई थिंक इज गुड टू गो। यू गाइस कैन डू माइक्रो मैक्रो, ठीक है? डू यू वांट मी टू टीच माइक्रो मैक्रो? थैंक यू। आ जाइए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्विक अंडरलाइनिंग्स। देखो क्या लिखा हुआ है। The unlimited and recurring wants of human beings have made the production process a continuous process. In this process, different factors of production like land, बुवी बुक खुली हुई है, अंडरलाइन कर रहे हो आप? Yes, ma'am. अभी नहीं अभी जब बोल है ना, जैसे कि क्या इट इज इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज अंडरलाइन आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हो? कंबाइन करते हैं, ठीक है? आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? अंडरलाइन। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड with the collective wants, collective efforts of the factors of production. पूरे factors of production को collectively use करके वो क्या करता है? goods और services बनाता है, ठीक है? produce करता है। और ये जो factor services है कौन देता है उसको? households. underline supplied by the households. आगे आ जाइए। firm makes payment to the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फैक्टर इनकम जिसको मिलती है, ठीक है? और जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं उसको फैक्टर इनकम लिखना तो फैक्टर कभी भी लिख सकते हो, उससे कुछ नहीं फर्क गलत नहीं पड़ेगा। है ना कुछ। आगे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? The household sector spends this money on purchase of goods and services produced by the firms. जो भी firms goods और services बनाते हैं household उसको खरीद लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए भैया। एक मिनट और करो, जस्ट अ सेकंड। चलो आगे आ जाओ। तो हाँ, वो ये बोल रहा है बेसिकली कि जो भी पैसे ये हाउस होल्ड को मिलते हैं ना, वो उन्हीं पैसों से क्या खरीद लेता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स जो भी तुम कमा के लाओगे, है ना, उसी से तो गुड्स और सर्विसेज खरीदोगे। आगे आ जाओ। सो कम टू मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी क्या है, हम इनकम क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, उसको अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली
its circulation from household to firms in the form of Consumption expenditure. on goods and services produced by them. और फिर हाउसहोल्ड जो है वो इस इनकम को क्या करती है, स्पेंड करती है. समझ में आ रही बात? ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो. गए वो जमाने में. तो जब हमें वो पूछेंगे जो सर्कुलर फ्लो का भी डायग्राम बनाने को बोला तब तो कितना बोलेंगे? डायग्राम भेजा आपने भी कराया ना ये नहीं क्योंकि सेक्टर सेक्टर मॉडल वाला हाँ वही ना जो अभी भी मैंने कराया वही तो कराया मैंने अभी तो है ना? वो तो डिपेंड करता है कि तुमको क्या कितने पूछना है. मार्क का है. हाँ कितने मार्क का है. आ जाइए. अब क्या लिखा हुआ है, 3 फेजेस. सबसे पहला फेज कौन सा है, जनरेशन फेज. अंडरलाइन. इन दिस फेज फर्म क्या करती है, प्रोड्यूसेस गुड्स एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फैक्टर सर्विसेज. आगे आइए. नेक्स्ट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज. यहाँ पे क्या होता है, अंडरलाइन, involves the flow of factor income, rent, wages, interest and profit from firms to the household. Disposition phase in which जो भी पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने रिसीव किया है वो उसको गुड्स और सर्विसेज खरीदने में स्पेंड कर देता है. Is that clear, Divyam and Bhuvi? Any doubt you guys have? No, no. Come to stock then. Make a bracket. What is stock? Stock variable refers to that variable which is measured at a particular point of. कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द अभी गोडाउन में 31 जनवरी को अभी कितना स्टॉक है गुड्स का, वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, स्टॉक. अंडरलाइन. स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम. ओके इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है. मनी सप्लाई का पूछ सकता है कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो. तो याद रखोगे मनी सप्लाई हमेशा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. क्यों? क्योंकि वो बताता है अभी इकोनॉमी में कितना पैसा है, इसलिए वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो सप्लाई समझ के फ्लो मत कर देना उसको. आगे आ जाओ. ब्रैकेट बनाओ वापस. Flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. For example, क्या लिखा है, production of goods during the month of January, birth rate in the year 2022. ना हाँ वो मेरा पुराना book my bad. ठीक है. National income in the year this, ये सब क्या होते हैं, flow variable. Underline. The period of time could be a day, a week, a year, etc. कुछ भी हो सकता है. Is that clear? कोई डाउट है क्या? आगे आ जाइए. It means flow variables are what? Underline. Flow variables are time dimensional. They are measured for a period of. Okay, for some better clarity, I'll read one of those examples. क्या लिखा है? The amount of water in tank is the quantity of वाटर जो अभी टैंक में, अभी टैंक में कितना पानी है, 10 लीटर. वो कौन सा कॉन्सेप्ट है ना. और पानी कितना बाहर आ रहा है टैंक से, 2 घंटे में 4 लीटर पानी खाली हो गया, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो. क्लियर है बात? कोई डाउट है? स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस टिक करो, इम्पोर्टेंट लिखो. लिख लिया? आगे आ जाइए. क्या लिखा है, रियल फ्लो और मनी फ्लो. चलो ब्रैकेट बनाओ. रियल फ्लो में इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए. क्या लिखा है, रियल फ्लो रेफर्स टू व्हाट, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. कहाँ से कहाँ, हाउसहोल्ड से फर्म में जो भी फैक्टर सर्विसेज जाता है. एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ, और उसके बदले में है ना रियल फ्लो में क्या जाता है, गुड्स एंड services from firm to households. Bracket close. Bhuvi, any doubt you have, beta? No, ma'am. दिव्या आपको भी समझ आ रहा है? Yes. आगे आ जाइए. क्या लिखा है, as seen in the diagram, household क्या देता है, come on,
सब बोलेंगे हाउस होल्ड क्या देता है किसको, और फर्म क्या देता है रियल फ्लो में, रियल फ्लो में फर्म क्या देता है गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो की बात हो रही है, मनी नहीं आएगा यहाँ पे। आगे आइए, which in turn provide goods and services to them as a reward for their productive services। आगे आइए, अंडरलाइन क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल फ्लो, ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं उसको हम, फिजिकल फ्लो। अंडरलाइन there is only exchange of what guys, between the two sectors without any involvement of, पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आगे आइए, अंडरलाइन रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी। रियल फ्लो ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है। कैसे? क्योंकि वो ये मेजर कर सकता है कि कितने अमाउंट के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है लोगों के पास पैसे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आगे आइए, मनी फ्लो में आइए, ब्रैकेट बनाइए, डायग्राम टिक कर लो, वो छोटे छोटे वाले दोनों पास में जो है क्या लिखा है, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फ्रॉम फर्म्स टू, फॉर व्हाट, for their factor services and corresponding flow of what, underline, consumption expenditure from household to firms for what, for purchase of goods and services। मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो ऐसा फ्लो है जो फर्म से कहाँ जाता है, हाउस होल्ड के पास, फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में। क्यों किए जाते हैं वो फैक्टर पेमेंट्स? For the factor services, and it is what, Manish, flow of consumption expenditure from households to firms for the goods and services, जो कि उनको कौन देता है, फर्म्स देती है। क्यों, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? आ जाओ आगे। As seen in the diagram, firms make factor payments to household for their factor services, and households spend this income on purchase of goods and services produced by whom? Firms. Underline. It is also known as, it involves exchange of money between the two sectors। Is that clear? Difference between, check करेंगे, सारे difference between important है। बढ़े आगे, कितने सेक्टर्स पढ़ाए थे अभी मैंने तुमको ऊपर? 4। सबसे पहला कौन सा? हाउस होल्ड सेक्टर। देखिए क्या लिखा है, अंडरलाइन, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड आल्सो द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ब्रैकेट क्लोज। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स, हु आर द कंज्यूमर्स, गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर कौन है? हम। हाउस होल्ड ही तो खरीदते हैं, और फैक्टर सर्विसेज भी कौन देते हैं? हम, हाउस होल्ड। हाँ या नहीं? क्या लिखा हुआ आगे देखो, दे सप्लाई फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड रिसीव इनकम इन रिटर्न। अंडरलाइन कर लो पूरा। वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भूवी, इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं? Factors in production। जो वो फर्म्स को देते हैं उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज। उन चारों के ऊपर ऐसे लाइन लगा के, है ना, ऐसे लाइन लगा के ऊपर लिखो कि ये क्या है, फैक्टर सर्विसेज हैं, और उनको उसके बदले में इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। उन चारों को मिला के क्या बोलेंगे? मिल रही है उनको, उनको मिल रही है। हाँ, तो फैक्टर इनकम बोलेंगे। समझ आ रही कि नहीं? आगे आ जाइए फॉर्म्स में। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स इन द
अंडरलाइन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स क्या करती है, ये फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड से क्या करती है, हायर। समझ आ गई बात? बोलिए, आगे आ जाइए। क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट सेक्टर एक्ट्स इन टू कैपेसिटी एज अ वेलफेयर, अंडरलाइन गवर्नमेंट is involved in maintaining law and order, defense and other Service of public welfare. आगे आइए, as a producer, it produces what, goods and services. in public sector enterprises. Fourth क्या है, foreign sector या rest of the, this sector includes transaction with the rest of the, underline. It is involved in export and import of goods and flow of capital between the domestic economy and other countries of the world. Capital investment का मतलब वो लोग कोई investment भी, हम भी बाहर को investment कर सकते हैं और बाहर वाले इंडिया में भी investment कर सकते हैं। Clear? भूवी, दिव्यम, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा आप लोग को? चलिए अब आगे आइए, क्या लिखा हुआ है? Circular flow of income in simple, क्या नाम है, टू सेक्टर economy. A simple economy assumes the existence of how many sector? Two sector. कौन कौन से? Households and underline. Households are the underline owners of factors of and consumers of goods and services. Firms क्या हैं? They sell goods and services to the households. कोई डाउट है? पक्का? बढ़े आगे, आगे आ जाओ। क्लोज और ओपन इकोनॉमी जो लिखा है प्लीज उसको रीड कर लेना, टिक करो, जस्ट गिव इट अ रीड। आगे आ जाइए assumptions में। So guys, whenever you write two sector model, अगर तुम्हारे फ्री के मार्क्स तुमको देने होंगे बोर्ड को तो ये जरूर दे सकता है वो, you never know कि आ जाए, because it is very very easy guys, आपको आना ही चाहिए ये। क्या लिखा हुआ है assumption में कि हम क्या assume कर रहे हैं, underline there are only how many sectors? Only two sectors. कौन कौन से? गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर यहाँ पर नहीं है। कोई डाउट है? पक्का? आगे आ जाइए। हाउस होल्ड क्या सप्लाई करता है बेटा? फैक्टर सर्विसेज सिर्फ किसको सप्लाई करता है? फर्म्स को। और फर्म सिर्फ किससे लेता है फैक्टर सर्विसेज? और किससे नहीं लेता। थर्ड क्या बोलता है? फर्म जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो सारे के सारे किसको दे देता है? समझ में आ रही है बात? फोर्थ क्या बोलता है? हाउस होल्ड जितनी भी फैक्टर इनकम रिसीव करता है वो सारी की सारी फैक्टर इनकम स्पेंड कर देता है टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? पक्का? आगे आ जाइए। देयर आर नो सेविंग्स इन द अंडरलाइन। ना ही हाउस होल्ड सेव करता है और ना ही फर्म सेव करती है। इज दैट क्लियर? Can you see that diagram? देखो उन्होंने थोड़ा बहुत अलग बनाया। हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज, हाँ या नहीं? और उसके बदले फर्म्स क्या दे रहे हैं? फैक्टर पेमेंट्स। फिर उसके बाद क्या फर्म्स और क्या दे रहे हैं उनको? गुड्स एंड, और उसके बदले में वो क्या दे रहा है? कंजम्पशन। तो जितने भी अंदर वाले लूप हैं, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट, वो मनी फ्लो है कि रियल फ्लो? मनी फ्लो। और जो आउटर लूप है वो कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो। मूवी, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. पक्का? गिविंग यू 5 minutes everyone। ये वाला जो पार्ट है टू सेक्टर वाला रीड करो, डिफरेंस बिटवीन जो है वो रीड करो, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। देन आई स्टार्ट विद चैप्टर 2। फिर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम साथ साथ बनाएंगे। ठीक है, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो।